إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه ابو داود. برادران اسلام، حاضرین جماعت، دینی ملی بھائیوں، عید قربان کا مہینہ قریب ہے اور اسلام میں قربانی کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے. عید قربان وہ تاریخ وہ دن ہمیں ایک عظیم واقعے کی طرف لے جاتا ہے. اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موضوع پر گفتگو کرنا بہتر ہوگا. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں درست باتیں کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، قربانی اردو لفظ ہے اور عربی میں بھی اس کا نام قربان ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قربانی کی یہاں اس آیت میں قربان کہا گیا ہے. قربان لفظ یہ عربی زبان میں قاف را با قرب سے مشتق ہے. قرب کہتے ہیں اللہ کی نیکی کر کے، اطاعت کر کے، عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی قربت حاصل کرنا. تو اس نام سے ہی اس عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. قربانی یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام امتوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اور بات ہے قربانی کے طریقے مختلف رہے ہیں اور قرآن کریم اللہ فرماتے سورہ حج کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کے الگ الگ طریقے بنائے. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے الگ الگ طریقے بنائے ہیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ. تاکہ وہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت، قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا.
ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے، عبادت کے طریقے الگ الگ بنائے ہیں۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کے الگ الگ طریقے بنائے ہیں، ہم ناسکو، جس پر وہ امت عمل کرتی رہی ہے، جس پر وہ امت عمل کرتی رہی۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی، جب قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ کرنا چاہا، اور اس وقت کی شریعت کے مطابق یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچے اور بچے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے اور بچے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑا دوسرے جوڑے کے ساتھ نکاح کرے گا۔ قابیل کا رشتہ طے ہونے والا تھا، قابیل کا رشتہ اس وقت کی شریعت کے مطابق حابیل کی بہن سے ہونا تھا، اور حابیل کا رشتہ اس وقت کی شریعت کے مطابق قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے زیادتی کرنی چاہی، اور حابیل کی بہن چونکہ بدصورت تھی اور وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، آدم علیہ السلام نے کہا تم لوگ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ جھگڑے کا حل یہ ہے، اختلاف کا حل یہ ہے کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ اس کی بات قابل قبول ہوگی اور وہ شخص کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر انہیں سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، دونوں بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ صحیح سند سے قربانی کی تفصیل موجود نہیں ہے، صحیح سند سے قربانی کی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن مشہور جو ہے مفسرین کے ہاں وہ یہ بات کی دونوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اپنے صدقے کو لے کر میدان میں گئے اور دونوں نے صدقہ کیا، دونوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو چھو کر چلی گئی، یہ علامت تھی کہ وہ صدقہ اور وہ قربانی کیا اللہ کی راہ میں قبول ہوئی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کی سنت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، اور اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ طریقے مختلف رہے ہیں، قربانی پیش کرنے کے طریقے مختلف رہے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر رکھی، اور اس سے اس عمل کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور عند اللہ اس کا مقام واضح ہوتا۔ جو قربانی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے وہ دراصل سنن ابن ماجہ کی حدیث، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور وہ عظیم الشان واقعہ اور وہ عظیم الشان قربانی اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دی۔ اللہ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک بیٹا نصیب ہوا اور انہوں نے بڑے لاڈ و پیار سے اس بیٹے کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اور جب وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تقریباً کم و بیش 20 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، ابھی اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کی چند بہاریں دیکھی تھی، ان کی زندگی میں ان کی زندگی کی خواہشات اور تمنائیں اور امیدیں ابھی بہت وسیع تھیں، باقی تھیں، ابھی زندگی کی چند بہاریں دیکھی تھیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، عقل و شعور کو پہنچے تھے، اور اسی دوران ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب دکھایا جاتا ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں تھا جسے پریشان کو خواب کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، وہ خواب نبی کا خواب تھا، اللہ کے نبی کا خواب تھا، اور اللہ کے نبیوں کا خواب وحی ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کا خواب وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے اسماعیل انی ارى فی المنام، میں خواب دیکھا ہوں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، جان تمہاری ہے
तुम अपनी जान में नफ्स के ज़रा मालिक हो, मुझे अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब दिखाया गया है। और नबियों का ख्वाब वही होता है, किसी आम इंसान का ख्वाब नहीं कि उसने शैतानी ख्वाब कह करके या परेशान को ख्वाब के नजरअंदाज कर जाए। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पूरी जिंदगी औलाद से महरूम रहे, बुढ़ापे में जो अल्लाह अपनी कुदरत और अपनी कुदरत से और अल्लाह अपनी रहमत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा नवाजता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो जाते हैं। उस बुढ़ापे में औलाद की खिदमत की सख्त जरूरत होती है, औलाद के सहारे की जरूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अजीम बंदे की जिंदगी को कुर्बानियों से, इम्तिहानात से, आजमाइशों से भर दिया था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के तमाम इम्तिहानात में पूरे उतरे थे, अल्लाह के तमाम आजमाइशों में पूरे उतरे। और एक अजीम कुर्बानी, एक अजीम इम्तिहान, आजमाइश ये कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करो। वो सब्र और तस्लीम का पैकर, वो फर्जंद, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाप आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, अल्लाह का हुक्म हम सब की मर्जी से मुकद्दम, हम सब की मर्जी से अहम है, हम सब की राय से अहम है। आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म मिला है उस हुक्म के मुताबिक अमल करिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों को पाएंगे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिना की तरफ ले जाते हैं। शैतान रास्ते में बहकाता है। बहरहाल फतल्लहु लिलजबीन लेटाते हैं, ज़िबा करने के लिए छुरी उनके गले पर फेरते हैं। आसमान से आवाज आती है, वनादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन। चुनांचे आसमान से आवाज आती है, क्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। मकसूद ये नहीं था कि तू अपने बेटे को ज़िबा कर, बल्कि मकसूद ये था कि तेरा इम्तिहान लिया जाए, तेरे ईमान का इम्तिहान लिया जाए, तेरे सब्र और तस्लीम और रजा का इम्तिहान लिया जाए। क़द सद्दक़्ता रुया, आसमान से आवाज आती है और फिर बेटे की जगह अल्लाह कहते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उसकी जगह अजीम ज़बीहा जानवर वहां इस्माइल के बदले में पेश किया। और जब आप पट्टी आंख से खोलते हैं, देखते हैं कि बेटे की जगह इसमें एक जानवर ज़बह हो रहा है, एक जानवर ज़बह हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस अजीम वाक़े को क़यामत की सुबह तक के लिए यादगार बना दिया। अल्लाह किसी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत की सुबह तक के लिए उस अजीम वाक़े को यादगार बना दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह कहते हैं व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, बाद वालों के लिए हमने ये सुन्नत छोड़ दी और बाद वालों के लिए ये वाजिब कर दिया कि वो इस तारीख में अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करें, कुर्बान करें। मेरे भाई, हमसे बहुत मामूली चीज मतलूब है, चंद पैसों का एक सामान मतलूब है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मतलूब थी और वो अल्लाह के इस इम्तिहान में पूरे उतरे, इस आजमाइश में पूरे उतरे। आज हमसे मामूली कीमत का एक जानवर मतलूब है, लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे लोग इस सुन्नत इब्राहिम पर अमल नहीं करते हैं, इस सुन्नत इब्राहिम पर अमल नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो भी रिया और नमूद के लिए, दिखावे और शोहरत के लिए। याद रखें, लेकिन अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुरान करीम में फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है। अल्लाह को कुर्बानी के गोश्त और खून की जरूरत नहीं। दरअसल ज़माने जाहिलियत में जब लोग कुर्बानी करते थे, हज के मौके पर कुर्बानी करते थे 10 तारीख को, 10 हिज्जा को, तो जानवर का खून वो ला करके बुतों के सामने रखते थे, और बाज़ मुशरिकीन कुर्बानी के जानवर का खून बुतों पर छिड़कते थे, बुतों पर छिड़कते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बातिल रस्म और रिवाज और तरीके को से मना किया और कहा, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को जानवर के गोश्त और खून की हालत नहीं है, जरूरत नहीं है। अल्लाह को तुम्हारा तक़वा पूछता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम किस लिए कुर्बानी कर रहे हो, किसके हुक्म की तामील में, किसकी रज़ा हासिल करने के लिए, किससे बदला पाने की तुम कुर्बानी कर रहे हो, अमल कर रहे हो। और याद रखो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
इंसान के माल को नहीं देखता, उसकी शक्ल सूरत को नहीं देखता, उसके जाओ हशमत को नहीं देखता, वलाकिन यनाल अल्लाह बंदों के दिलों को और उनके अमाल को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, रब के लिए नमाज पढ़ो और रब के लिए कुर्बानी करो। अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम ये कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए पेश करें, शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, लोगों के आग से बचने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कुर्बानी करें, तभी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। दूसरी आयत में कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हमें हुक्म दिया गया है कि इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। और याद रखिए मेरे भाई, अल्लाह किसी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता है, चाहे कुर्बानी माल कुर्बानी हो, जानवर की कुर्बानी हो, चाहे कुर्बानी इंसान अपने नफ्स को कुर्बान कर दे अल्लाह की राह में, अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, शहीद हो जाए। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी की बड़ी अहमियत और उसकी बड़ी फजीलत है और उसका बड़ा मकाम है। अल्लाह किसी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता, चाहे हम अपने आराम की कुर्बानी दें अल्लाह की खातिर, अपनी नींद की कुर्बानी दें अल्लाह की खातिर, अपने माल की कुर्बानी दें अल्लाह की खातिर, या किसी और चीज की कुर्बानी दें, पेश करें अल्लाह की राह में, कुर्बान कर दें। अल्लाह किसी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता। वअन लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ। अल्लाह इंसान को वो चीजें अता फरमाता है जिसकी वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, इस चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल फरमाता है। बशर्ते की कुर्बानी क्या है, अल्लाह की रजा के लिए हो। वो वक्त की कुर्बानी, मेहनत और जद्दोजहद की कुर्बानी, वो आराम की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी वगैरह वगैरह, सारी कुर्बानी अगर अल्लाह के नाम पेश किया जाए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अमल है, बड़ी अजीम नेकी। तो मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा था कि ईद कुर्बान बहुत करीब है और कुर्बानी दरअसल ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिस तारीख में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो अपने बेटे को अल्लाह के नाम कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें बदला दिया, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को ऐसे बदला देते हैं। अल्लाह ने उस सुन्नत को क़यामत की सुबह तक के लिए यादगार बना दिया और तमाम बंदों को ये हुक्म दिया कि उस तारीख में अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करें। जानवर किस किस्म के जानवर कुर्बान करने हैं? कुरान करीम में फरमाता है समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवर, समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवर, मिनल बअद इत्नैन, मिनल ज़अन इत्नैन, दुम्बा हो, भेड़ हो, दुम्बा नर और मादा, बकरी नर और मादा 4 हो गए, गाय नर और मादा 6 हो गए, ऊंट नर और मादा 8 हो गए। ये 8 किस्म के जानवर, चाहे नर हो या मादा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ये 4 किस्म के जानवर नर और मादा मिलाएं 8। दुम्बा, उसमें भेड़ भी दाखिल है, दुम्बा भेड़ एक किस्म, दूसरी किस्म बकरी नर और मादा, तीसरी किस्म ऊंट नर और मादा, चौथी किस्म गाय बकर नर और मादा। इस सिलसिले में यहाँ एक मसला वाज़ेह कर दूं, और ये सवाल आमतौर से लोग करते हैं कि भैंस को किस जुमरे में रखेंगे, भैंस को किस जुमरे में रखेंगे। अल बकर एक जिन्स है, बाज़ उलमा ने भैंस को बकर के जिन्स में लिया, बकर चाहे गाय हो या बैल हो। तो दरअसल भैंस ये हिजाज में नहीं पाया जाता, हिजाज में भैंस नहीं पाई जाती है और ये हमारे बर्र-ए-सग़ीर में भैंस का वजूद है। तो बाज़ उलमा ने भैंस को बकर के जिन्स से लिया और कहा जो हुक्म गाय और बैल का वही क्या भैंस और भैंस का। और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, भैंस कुर्बानी नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने कभी भी इस जानवर की कुर्बानी नहीं की, भले वो जिन्स से हो, लेकिन सहाबा ने, अल्लाह के नबी सहाबा ने बाद में भी भैंस की कुर्बानी नहीं की। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि जिन जानवरों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, सहाबा ने कुर्बानी की है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए ताकि हमारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। क्यों? ये इबादत है, इबादत को ऐसे ही करना चाहिए जैसे करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी
वसल्लम ने अमली तौर पर सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल तक रहे और कुर्बानी करते रहे, हर साल कुर्बानी करते रहे। आपकी सुन्नत 10 साल तक मदनी जिंदगी में आप कुर्बानी करते रहे, सहाबे किराम कुर्बानी करते रहे। और ये सुन्नत मुअक्कदा है। हर वो शख्स जो कुर्बानी करने की ताकत पाता है, जो अपने अंदर माली एतबार से कुर्बानी करने की ताकत पाता है और जानवर का खरीदना मुमकिन है, दस्तयाब है, ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना। और हदीस का फरमाते हैं मन वजद सअतन वलम युदही फला यक़रबन मुसल्लाना, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत पाए और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह ना आए, वो हमारी ईदगाह ना आए। जो कुर्बानी करने की ताकत पाए अपने अंदर और कुर्बानी ना करे ऐसा शख्स हमारी ईदगाह में ना आए। मेरे भाई, कुर्बानी हर फर्द पर वाजिब नहीं, हर फर्द पर मशरू नहीं, बल्कि कुर्बानी के पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। एक कुर्बानी एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। जानवर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए आसानी पैदा की, और वो जानवर जो गाय, जो दुम्बा हो या भेड़ हो या बकरे हो, ये एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से काफी है, पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। और ऊंट और गाय जो बड़ा जानवर है, उम्मत के लिए आपने आसानी पैदा की, ये बड़ा जानवर 7 घर वालों की तरफ से काफी है, 7 घर वालों की तरफ से काफी। सहाबी कहते हैं हम लोग हुदैबिया के साल कुर्बानी किए, हम लोग गाय और ऊंट में 7 लोग शरीक होते थे, 7 लोग शरीक होते थे। तो इस तरीके से एक बकरी या एक दुम्बा, एक भेड़ पूरे एक घर वालों की तरफ से काफी होगा, और एक ऊंट या एक गाय ये 7 घर वालों की तरफ से काफी होगा। जो शख्स मुकम्मल एक जानवर ज़िबा नहीं कर सकता है, वो गाय या ऊंट में एक हिस्सा ले सकता है, और वो एक हिस्सा पूरे घर वालों की तरफ से काफी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुर्बानी करते और कहते अल्लाह तक़ब्बल अन्नी व अन अहली व अम्मन लम युदही मिन उम्मती। आप एक जानवर पूरे एक घर वालों की तरफ से काफी। ऐसा नहीं कि बाप की तरफ से कुर्बानी हो तो माँ या बेटे या बेटियां सवाब से महरूम होंगी, ऐसी बात नहीं, बल्कि सवाब में सबको शरीक, सब शरीक होंगे। और ये करना, जैसा कि हमारे यहाँ रवाज है कि बड़ों की तरफ से कुर्बानी ना होकर के, पिछले साल हमारी तरफ से कुर्बानी हुई, इस साल फलां की तरफ से होगी, अगले साल फलां की तरफ से होगी। कभी नाबालिग बच्चों की तरफ से, जिनका जो शरीयत के मुकल्लफ पर पाबंद नहीं है, जो शरीयत के मुकल्लफ पर पाबंद नहीं है, बड़ों को छोड़कर, घर के सरपरस्त को छोड़कर उस छोटे बच्चे की तरफ कुर्बानी की जाती है। ये गैर मशरूअ तरीका है। जो घर का सरपरस्त हो उसकी तरफ से कुर्बानी हो, और उस कुर्बानी, उस सवाब में, नियत में सारे पूरे घर वाले क्या है, शरीक होंगे, पूरे घर वाले शरीक होंगे। कुर्बानी का जो वक्त है वो ईद की नमाज और खुतबे के बाद, ईद की नमाज और खुतबे के बाद। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस, आप ने फरमाया जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी करता है, जो नमाज से पहले और खुतबे से पहले जानवर ज़िबा करता है, फइन्नमा यज़बहु लिनफ्सी, वो अपने वो गोश्त खाने के लिए जानवर ज़िबा कर रहा है। गोश्त खाना हलाल होगा, मगर वो कुर्बानी का मकाम और दर्जा नहीं पाएगा, कुर्बानी की सुन्नत पूरी नहीं होगी। लिहाजा फरमाया आपने, जो शख्स नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर लिया, फलयुईद मकानहा उखरा, वो उस जगह दूसरा जानवर क्या है, ज़िबा करे, नमाज बाद दूसरा जानवर ज़िबा करे। जो नमाज से पहले कुर्बानी कर लेता है, उसकी वो सुन्नत पूरी नहीं हुई, वो अमल कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगा, वो आम जानवर ज़िबा करने की तरह होगा गोश्त खाने के लिए। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज से पहले कुर्बानी कर लेता है, तो उसके लिए है वो नमाज के बाद दूसरा जानवर ज़िबा करे। अगर उस कुर्बानी की ताकत, कुर्बानी का सवाब पाना चाहता है, उस सुन्नत पूरी करना चाहता है, तो नमाज के बाद दूसरा जानवर क्या है, कुर्बान करे। मेरे भाई, कुर्बानी का दिन, इससे भी कुर्बानी की फजीलत मालूम होती है। फरमाया आपने, इन्ना अज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम दिन साल के तमाम दिनों में, इन्ना अज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, साल के तमाम दिनों में सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है। सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है साल के तमाम दिनों में। इसलिए कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो उस दिन हज के अक्सर अरकान और अमाल अदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन को साल के तमाम दिनों में सबसे अजीम दिन करार दिया। मेरे भाई, आप गौर करें दूसरे हदीसों पर
یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عاشورہ کی فضیلت اور دیگر راتوں اور دنوں کی فضیلت کتنی زیادہ، اور ان تمام فضیلت والے دنوں میں یوم النحر کو، قربانی کے دن کو سب سے عظیم دن قرار دیا ہے، سب سے عظیم دن قرار دیا گیا۔ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دن، بابرکت دن، محبوب دن وہ دن ہے جس دن میں مسلمان، دنیا کے کونے کونے مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، رواه مسلم۔ فرمایا آپ نے جب تم ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو، دوسری بات میں ہے جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور کوئی شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ أَشْعَارِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے بالوں اور ناخن کو روک کے رکھے، نہ کاٹے، بالوں اور ناخن کو نہ کاٹے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد 10 تاریخ کو اپنے ناخن اور بال کاٹے گا۔ جس وقت تمام حجاج کرام اللہ کی گھر کی زیارت کرنے والے حجاج کرام حالت احرام میں ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں، اور حالت احرام میں ان کے لیے ناخن بال کاٹنا منع ہے، وہ ناخن اور بال کاٹنے کو وہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، اور جب 10 تاریخ آتی ہے اس دن اپنے ناخن اور بال کاٹتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی اس عظیم شعیرے میں ان حجاج کرام کے ساتھ شامل ہو، اور قربانی بھی اللہ کی نشانی میں سے نشانی، قربانی بھی کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ مَشَاعِرِ، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے کیا اللہ کی نشانی بنا دی ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی میں شامل کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ یہ تقوی کی علامت ہے، اس کے تقوی کی علامت اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا۔ قربانی اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے، قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے کیا اللہ کی نشانی قرار دی ہے، اللہ کی نشانی بنائی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، قربانی کی تعظیم کرنا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو پھر اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کاٹتا ہے، قربانی کرنے والا شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو کاٹتا ہے جان بوجھ کر، وہ گنہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، بلکہ محدثین نے، علماء نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ أَشْعَارِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے ناخن اور بال کو ہرگز نہ کاٹے، اپنے ناخن اور بال کو ہرگز نہ کاٹے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد 10 تاریخ آنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے ناخن اور بال کاٹتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، اس پر توبہ لازم۔ اگر کوئی شخص بھول کر ناخن کاٹ لیا، بال کاٹ لیا، خیال نہیں تھا، بھول کر اس نے یہ کام کر دیا، تو اسلام میں رفع عن امتی الخطأ والنسیان واستکرہ علیہ، امت سے خطا اور نسیان، بھول چک کیا ہے، معاف۔ تو میرے بھائی یہ چند مسائل قربانی سے متعلق، اور نے جان لیا کہ قربانی کب کرنی ہے، قربانی کرنے کے اوقات، قربانی کرنے کا وقت کیا ہے۔ قربانی کرنے کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز اور خطبہ کے بعد، عید کی نماز اور خطبہ کے بعد قربانی کی جائے گی۔ کب تک کی جائے گی؟ کب تک کی جائے گی؟ فرمایا آپ نے کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کی۔ ایک ہے یوم النحر، وہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذو الحجہ، قربانی کا دن یوم النحر 10 ذو الحجہ ہے۔ پھر 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہا گیا ہے، ایام تشریق کہا گیا۔ فرمایا آپ نے کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن 11، 12، 13 یہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کے دن ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے منقطع ہے، لیکن دوسری روایتیں ہیں
जो मौसूल सनद से आई हैं, जिनमें इनकता नहीं पाया जाता है, और दूसरी रिवायतों, दूसरी सनदों को देखते हुए अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे हसन करार दिया, सनद को हसन करार दिया है। तो यह हदीस हसन के दर्जे तक पहुंचती है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िबहुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन ज़ब्ह करने के दिन है। तो दूसरी हदीस का फरमाते हैं कि ये सारे अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्र लिल्लाह, अय्याम तशरीक ये खाने और पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है, खाने और पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। तो मालूम ही हुआ कुर्बानी के दिन कितने हैं? 4 दिन हैं। एक यौमुन नहर है, एक यौमुन नहर है, और 3 दिन अय्याम तशरीक के हैं, 11, 12, 13 तारीख के सूरज गुरूब होने से पहले तक कुर्बानी करना मसनून है। कुर्बानी को उद्हिया दिन कहा जाता है, इसलिए कि उद्हिया के माने होते हैं चाश्त, वहा के माने चाश्त का वक्त। चूंकि आम तौर से लोग सुबह अल्लाह की राह में जानवर ज़ब्ह करते हैं, इसलिए उस कुर्बानी को उद्हिया कहा जाता है, चाश्त को। मेरे भाई, एक दूसरा मसला ये भी है कि कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आम तौर से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। देखें, इस सिलसिले में इस्लाम ने कोई पाबंदी, कोई तफसील बयान नहीं की है। कुरान करीम सूरह हज में अल्लाह फरमाते हैं फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद खाओ और फकीर और मुहताज लोगों को भी खिलाओ, खुद खाओ और फकीर और मुहताज लोगों को खिलाओ। बाद में कहा कि गोश्त के 2 हिस्से किए जाएंगे, आधा हिस्सा अपने लिए, आधा हिस्सा फुकरा और मुहताजिन के लिए। बाद में कहा गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, और तीसरा हिस्सा मुहताजिन और फुकरा के लिए। लेकिन इस सिलसिले में कोई वजाहत अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। आपने गोश्त के 2 या 3 हिस्से करने का हुक्म नहीं दिया है। कुरान की फरमाते हैं फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद खाओ और फुकरा मुहताजिन को खिलाओ। कितना? आधा, 1/3। इसकी कोई वजाहत नुसूस के अंदर, कुरान हदीस के अंदर नहीं आई है। लिहाजा इस आम को आम रखें, इस आम को आम रखें, मुतलक को मुतलक रखें, मुतलक को मुक़य्यद करने के लिए, आम को खास करने के लिए कोई दलील होनी चाहिए। तो बहरहाल सलफ का अमल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है। अल्लाह के नबी 10 साल तक मदनी जिंदगी में कुर्बानी करते रहे, मगर आपने इस तरह से कुर्बानी के 2 हिस्से या 3 हिस्से न किए और न इसका हुक्म दिया, न किए और न इसका हुक्म दिया। हुक्म क्या है? फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खाओ और फुकरा मुहताजिन को भी खिलाओ। एक मरतबा कबीले तैम का एक वफ़द और एक काफिला आया मदीने के अंदर, फुकरा और मसाकीन का एक काफिला मदीने के अंदर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल तमाम सहाबा को ये हुक्म दिया कि कोई भी शख्स कुर्बानी का गोश्त बचा कर ना रखे, कुर्बानी गोश्त बचा कर ना, खाओ और खिलाओ, खाओ और खिलाओ। इसलिए कि एक काफिला तुम्हारे शहर में आया है, फुकरा मुहताजिन का एक काफिला तुम्हारे शहर में आया है जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं। जब अगला साल आया, अगली कुर्बानी आई, वो तारीख आई, तो आपने कहा कि मैंने तुमको कुर्बानी गोश्त बचा कर रखने से मना किया था उस काफिले की वजह से जो काफिला तुम्हारे पास तुम्हारे शहर में आया था। फकुलू वद्दखिरू, अब खाओ और बचा के भी रखो, अब खाओ और बचा के भी रखो। आपने 2 हिस्से 3 हिस्से करने का हुक्म नहीं दिया, कहा खाओ और बचा के भी रखो। फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खाओ और मुहताजिन को भी खिलाओ। तो इससे कुर्बानी गोश्त का मसरफ हमें मालूम हो गया। एक और मसला है कुर्बानी गोश्त का खाल, चमड़ा। ये सवाल भी आम तौर से लोग करते हैं कि इसको क्या किया जाए। कुर्बानी के जानवर का कोई भी हिस्सा बेच नहीं सकते, फरोख्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी हिस्सा फरोख्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुर्बानी का चमड़ा या तो आप खुद इस्तेमाल करें दबाव देने के बाद, या फिर उसे किसी फकीर मुहताज को क्या है सदका कर दें, सदका कर दें। अब वो सदका लेने वाला, चमड़ा लेने वाला चाहे तो खुद इस्तेमाल करे, चाहे तो क्या वो बेच कर उसका पैसा इस्तेमाल करे। लेकिन आप अपने जानवर का चमड़ा बेच नहीं सकते, या तो खुद इस्तेमाल करें, पर इस्तेमाल में लाएं, जैसे गोश्त पर इस्तेमाल में लाते हैं, या एक वो चमड़ा क्या किसी गरीब मुहताज का सदका कर दें। ये कुर्बानी की चमड़े का मसरफ। कुर्बानी ज़बाह करना ये अपने हाथ से मसनून और मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बाह किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बाह किया, और कुर्बानी के जानवर को किबला की तरफ उसके रुख को किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आपने जानवर को अपने हाथ से ज़बाह किया और हुक्म दिया
कि कुर्बानी के जानवर गोश्त कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए अपनी छुरी को तेज कर लो, अपनी छुरी को तेज कर लो, ताकि जल्द उसकी शहरत कट जाए और उसे तकलीफ ना हो और उसकी तकलीफ जल्द क्या है खत्म हो जाए। तो छुरी तेज कर लेनी चाहिए और कुर्बानी के जानवर का रुख किबले की तरफ हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके उसे ज़बह किया जाए, उसे ज़बह किया जाए। कुर्बानी ज़बह दूसरों से भी करवा सकते हैं, मगर कस्साब को कुर्बानी के जानवर के गोश्त से उजरत देनी जायज़ नहीं। बाज़ लोग ये भी करते हैं, क्यों पैसे नहीं चाहिए हमें, क्या गोश्त दे देना, पैसे नहीं चाहिए गोश्त दे देना, ये उजरत क्या है जायज़ नहीं। हाँ, अपनी मर्जी खुशी से आप मजदूरी देने के बाद, कस्साब को मजदूरी देने के बाद, अलग से मजदूरी देने के बाद अगर आप अपनी खुशी मर्जी से बगैर किसी इत्तेफाक के अगर आप कुछ गोश्त से हदिया दें, कोई हरज की बात नहीं, जायज़। लेकिन पैसा उजरत ना दे करके गोश्त को बतौर उजरत देना, गोश्त बतौर उजरत देना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इसका इसलिए कि ये भी बेचना हुआ और कुर्बानी की जानवर गोश्त बेच नहीं सकते, कुर्बानी की जानवर के गोश्त बेचना जायज़ नहीं। ऐसे ही एक और मसला है और आखिरी मसला है, इससे मैं बयान खत्म करना चाहूँगा और इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में बतलाऊँगा कि ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की फजीलत क्या है और ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में कौन कौन से अमाल मुस्तहब हैं। कुर्बानी से मुतालिक ये आखिरी मसला अहम मसला है और इस ताल्लुक से लोग सवाल करते हैं, क्या मय्यत की तरफ से कुर्बानी करनी जायज़ है या नहीं, मय्यत की तरफ से कुर्बानी करनी जायज़ है या नहीं। मेरे भाई, मय्यत की तरफ से कुर्बानी की तीन सूरतें हैं, मय्यत की तरफ से कुर्बानी करने की तीन शक्लें हैं, तीन सूरतें हैं। पहली शक्ल यह है कि या तो उसे उसकी तरफ से मुस्तकिल एक जानवर ज़िबा किया जाए, दूसरी शक्ल यह है कि जब आप नियत कर रहे हो कि ये मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से है और घर वालों में मय्यत भी शामिल कर लें जो फौत हो चुके हैं, बाप हो, माँ हो, बीवी हो, बेटा हो, है जो फौत हो चुके हैं, वो भी अहले बैत में से, भी घर वालों में से हैं, अहल में से हैं। अगर नियत में उनको भी शामिल कर लें, एक ही जानवर पूरे घर वालों की तरफ से है, उसमें जिंदा और मुर्दा दोनों क्या है शामिल कर लें। और तीसरी शक्ल क्या है, वसीयत, अगर मय्यत की वसीयत हो और उसकी वसीयत की तनफीज में वो कुर्बानी हो रही हो, ये तीन शक्लें हैं। देखें, अगर मय्यत अपनी औलाद को वसीयत कर गया कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, मेरी तरफ से कुर्बानी मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ये जायज़ और दुरुस्त है, उसकी वसीयत की तनफीज की जाएगी, वसीयत पूरी की जाएगी। और वर्षा अगर ताकत रखते हैं, वर्षा अगर ताकत रखते हैं तो पर वाजिब है कि वो अपने मुअर्रिस, अपने मय्यत की वसीयत को क्या है पूरी करें। तो वसीयत चाहे खाना खिलाने की हो, कपड़ा तकसीम करने की हो या कुर्बानी की हो, जो भी शक्ल हो, जो भी शक्ल हो, अगर मय्यत वसीयत कर गया कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, वसीयत क्या पूरी की जाएगी। अगर जायज़ तो वसीयत की तनफीज करते हुए मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना क्या है जायज़। दूसरी शक्ल यह है कि आप जब ये कह रहे हो कि अल्लाह तुम मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा और घर वालों में मय्यत को भी शामिल कर ले नियत में, तो इसका सवाब इंशाअल्लाह मय्यत को पहुंचेगा, मय्यत को पहुंचेगा। तीसरी शक्ल यह है कि मुस्तकिल एक जानवर मय्यत की तरफ से ज़िबा करना और दूसरा क्या अपनी तरफ से करना, इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं। देखें, नियत में मय्यत को शामिल करना, इसकी दलील क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और कहा मेरी तरफ से और मेरी बीवियों की तरफ से है, मेरी बीवियों, आपकी बीवियों में आपकी फौजशुदा बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल है। तो इससे अगर नियत में घर वालों में उनको भी शामिल कर लिया जाए तो क्या जायज़ और दुरुस्त। ऐसे ही वसीयत की तनफीज की दलील क्या है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये रिवायत मजहूल सनद से आई है, मजहूल इसको ज़ईफ करार दिया है बाज़ मुहद्दिसीन ने, लेकिन अगर कोई दलील पकड़ता है तो ये दरअसल अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तरफ से कुर्बानी करते थे और कहते थे औसानी खलीली बिल्लाह, मेरे खलील अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत की कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता रहूं, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता रहूं। वहीं पर आप देखें कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बाखयाल थी, है ना,
اور آپ کی دیگر بیویاں باحیات تھیں، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں باحیات تھیں، اور ان بیویوں میں سب سے عظیم فقیہہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، متقیہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی باحیات تھیں۔ اہل بیت کے دیگر افراد باحیات تھے، خلفائے راشدین جیسی عظیم ہستیاں، مبارک ہستیاں، علم و فقہ والی ہستیاں باحیات تھیں۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی نہیں کی سوائے علی رضی اللہ عنہ کے، اور یہ بھی کہتے ہیں مجھے وصیت کی تھی آپ نے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں۔ معلوم ہوا اگر میت وصیت کر جائے تو اس کی تنفیذ کی جائے گی، اور وصیت کو پوری کرتے ہوئے قربانی کر دی جائے تو جائز اور درست ہے۔ لیکن مستقل ایک جانور ذبح کرنا میت کی طرف سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے مستقل ایک جانور کیا قربانی کیا، ذبح کیا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکی زندگی میں فوت ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں 10 سال تک قربانی کرتے رہے۔ اگر مستقل ایک جانور میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مشروع ہوتا، درست ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے مستقل ایک جانور کیا ذبح کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی آپ کی زندگی میں، تین بیٹیاں فوت ہوئی۔ کتنی بیٹیاں؟ تین بیٹیاں فوت ہوئی آپ کی زندگی میں، آپ باحیات تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ساری بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، سارے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ نے کسی بیٹی کسی بیٹے کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ لہذا قربانی چونکہ عبادت ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس سے ہٹنا یہ جائز اور درست نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ہم سب کو اسلام کے مسائل سمجھنے اور سنت نبوی کے مطابق سارا حکم انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور